چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں، پاکستان کو پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا، محمد یاسین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی کا لاہور میں پاور شو، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور کے حلقہ این 127 ٹاؤن شپ میں جلسہ، جیالے قافلوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے خطاب کرتے ہوئے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا ووٹ کو عزت دو کے دعوے دار اپنے نظریے کو چھوڑ کر سیاست کر رہے ہیں، نہیں چاہتا کوئی کارکن نون لیگ کے ظلم کا سامنا کرے۔ پیپلز پارٹی ملک کو معاشی اور جمہوری بحران سے نکالے گی۔ جو ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہے وہ اس وقت اپنی نظریہ چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آ کر اشرافیہ کے بجائے غریب کو سبسڈی دے گی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے۔ پنجاب پر کبھی شوباز اور کبھی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے۔ پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کر دوں گا۔ جو خود امیر ہے، جو خود اشرافیہ کا حصہ ہے اور ان کو سالانہ اربوں روپے کا سبسڈیز دیا جا رہا ہے، ہم اس ملک کو اس جمہوری بحران سے بھی نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی کے جلسے سے سابق گورنر چودھری سرور، عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈاپور سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ لاہور میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز نے بھارتی گیٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور کہا کہ اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ 8 فروری کا دن ملک کی تقدیر بدلے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسامہ غوری کی اس رپورٹ میں۔ بھاٹی گیٹ میں مسلم نون کا ورکر کنونشن، کارکنوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ حمزہ شہباز نے مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا اور کہا کہ اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ 8 فروری کا دن ملک کی تقدیر بدلے گا، ہم الیکشن جیت کر ملک کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ پاکستان کی ترقی کو اپنا گول بنایا، ہم بھی چاہتے تو تماشا دیکھتے رہتے، لیکن ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اللہ کے حضور یہ توقع ہے کہ 8 فروری کا سورج شیر کی جیت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ ماضی میں ہماری قیادت کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، مگر ہم خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ الیکشن جیت کر عوام کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ملیں گے اور معیشت کو پھر مستحکم بنائیں گے۔ 8 فروری کو جب پورے پاکستان میں شیر کی آواز آئے گی تو بجلی کے 100 یونٹ نہیں، انشاءاللہ 300 یونٹ کو مفت کریں گے پاکستانی قوم کے لیے۔ آج کے نوجوان جن کے پاس روزگار نہیں ہے، فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ 8 فروری کو جب شیر جیتے گا تو ان نوجوانوں کو جھوٹے دلاسے نہیں بلکہ لیپ ٹاپ دیں گے انشاءاللہ۔ مسلم نون کے ورکرز کنونشن میں کارکنوں کا جوش و خروش عروج پر تھا، جو ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے اور نعرے لگاتے رہے۔ کراچی کے باغ جناح میں ایم کیو ایم پاکستان نے سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ شہر قائد نے 8 فروری کا فیصلہ آج ہی دے دیا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ کراچی والوں نے جلسے میں شرکت کر کے پیپلز پارٹی کی سرمایہ کاری ڈبو دی ہے۔ کراچی سے محمد ارشد کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابات 2024 شہر قائد میں سیاسی گہما گہمی عروج پر، ایم کیو ایم پاکستان کا باغ جناح میں پاور شو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کا فیصلہ عوام نے آج ہی دے دیا۔ آج وعدہ تھا ایم کیو ایم کے کارکنوں کا کہ 8 فروری کو نہیں، آج فیصلے پہ مہر لگ گئی ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہمارے بغیر ملک کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے گھر پانی ٹینکر سے آتا ہے تو اپنے وزیر اعلیٰ سے جواب کیوں نہیں لیا؟ آپ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو، ایم کیو ایم کے بغیر بن سکتے ہو؟ تمہارے بڑے کبھی ایم کیو ایم کے بغیر وزیر اعظم بن سکے ہیں جو آپ بناؤ گے وزیر اعظم؟ جلسے سے خطاب میں ڈاکٹر فاروق ستار بولے کراچی میں جو ترقی ہوئی ایم کیو ایم کے دور میں ہوئی۔ جلسے سے رسین جلیل سمیت ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کی بڑی تعداد نے بھی جلسے میں شرکت کی۔
استحकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का कहना है कि उनकी पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन फ़र्ज़ है, मईशत को बेहतर करना हमारा पहला काम होगा। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दही और शहरी इलाकों में एक जैसी आवाम रहती है, हलकों में आवाम के मसले एक जैसे ही हैं। महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हर इंसान को इस चीज़ का बहुत नुकसान होता है। तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि मईशत को ऐसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे मईशत में चीज़ें की जाए, स्टेप्स लिए जाएँ जिनसे महंगाई ख़त्म हो जाए, बहुत कंट्रोल में आ जाए। हर चीज़ की बुनियाद है मईशत हर चीज़ की बुनियाद है। और हमने पहली अव्वलीन जो हमने पॉलिसी बनानी है वो इस पे कि मईशत चमके, मईशत में लोग आके इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्ट करें, कामयाब हो, ताकि लोगों को रोज़गार बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले। और मईशत ही तो इस मुल्क की जिम्मेदार होती है। पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के 28,000 से ज़ायद अहलकार दरकार होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त भी जारी कर दी है। राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी। 7,832 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हिसास और 15,155 पोलिंग स्टेशंस को हिसास करार दे दिया गया। 27,475 पोलिंग स्टेशंस नॉर्मल हैं। इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 6 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। ड्यूटी के लिए 2,32,667 एहलकार तैनात होंगे। एक हल्के में क्विक रिस्पांस फोर्स के 200 एहलकार मौजूद होंगे। ज़राए का कहना है कि फौज या रेंजर्स की तैनाती की सूरत में इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशंस के लिए 31,328 एहलकार, जबकि हिसास पोलिंग स्टेशंस के लिए 45,465 जवान दरकार होंगे। कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए भरपूर सियासी जोर आजमाई का सिलसिला जारी है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से जारी इंतखाबी मुहिम अवाम पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है, ये बता रहे हैं कराची से शहबाज खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के 7 अजला में कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए भरपूर सियासी जोर आजमाई का सिलसिला जारी है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से अपने अपने हलकों में इलेक्शन ऑफिस खोलने के साथ साथ गलियों, मोहल्लों, चौराहों और खंबों पर सियासी जमातों के परचम, बैनर्स और पोस्टर लगाकर खूब तशहीर की जा रही है। दूसरी जानिब सियासी जमातों की इंतखाबी तशहीरी मुहिम महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल में घिरे अवाम को अपनी तरफ माइल करने में नाकाम नजर आती है। झंडा उठा के और नारे लगा के तो वोट नहीं होता ना। वोट तो होता है कि जिसने काम किया, काम करने के बाद उसकी बाकायदा इम्प्लीमेंट हुई है। बिग डेज हैं ये इलेक्शन के कि बहुत कम दिन रह गए हैं, मगर उस हवाले से कोई ऐसी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक बात है आवाम की, इतनी मायूस है आवाम, इतनी परेशान है कि उसके सामने सारी सियासी जमातें, मगर वो अपने वोट का हक उसे नज़र नहीं आ रहा वो किसे दे। शहरी कहते हैं कि सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय वो पैसा आवाम की फलाह व बहबूद पर लगाएं तो काफी हद तक मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्तान कोर के ज़ेरे एहतमाम उकाड़ा गैरिजन में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने बेहतरीन अस्करी ड्रिल पेश की। पाकिस्तान और सऊदी अरब की फोर्सेस ने जंगी सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए मुश्तरका फौजी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ISPR के मुताबिक मुश्तरका ट्रेनिंग के आगाज पर दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने बेहतरीन अस्करी ड्रिल पेश की। दोनों ममालिक के कौमी परचम की रुनमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गैरिजन कमांडर थे। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम के जरिए दोनों ममालिक की अफवाज के दस्तों को क्लास रूम सेशंस और जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी ने दोनों मुल्कों की अफवाज के अफसरों और जवानों को मुश्तरका ट्रेनिंग के बैजेस लगाए। निगरान हुकूमत ने IMF ने टैक्स एमनेस्टी और सब्सिडी न देने के साथ साथ नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF के डू मोर मुतालबे पर निगरान सरेंडर, अवाम की जेबों से 90 अरब रुपए निकालने का प्लान तैयार। चीनी और दीगर मसनूआत व खिदमात पर मजीद टैक्स। जून तक कोई टैक्स एमनेस्टी, सब्सिडी ना देने, नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। प्लान मालियाती इदारे के हवाले कर दिया।
दस्तावेज के मुताबिक आवाम पर हर माह 18 अरब रुपए मजीद टैक्स लगाया जाएगा और 5 माह में 90 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, टेक्सटाइल लेदर मसनूआत पर GST की शरह में 3% इजाफा करके 18% करने की तजवीज है। मशीनरी दरामद पर 1% एडवांस टैक्स बढ़ाने से महाना 2 अरब रुपए हासिल होंगे। खाम माल की दरामद पर भी 1% टैक्स बढ़ाने से 2 अरब रुपए मिलेंगे। कमर्शियल इंपोर्टर्स के सामान पर 1% टैक्स बढ़ाने से महाना 1 करोड़ रुपए की आमदन मुतवक्को है। खिदमात पर 1% टैक्स बढ़ाने से महाना 1.5 अरब रुपए हासिल होंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स बढ़ाने से महाना 1.5 अरब रुपए मिलेंगे। निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन 1590 अरब रुपए इजाफे के साथ 11,000 अरब करने का प्लान भी IMF से शेयर कर दिया। रिटेल, प्रॉपर्टी और तामीराती शोबों से ज्यादा टैक्स वसूली, वेबसाइट समेत डिजिटल मार्केट्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि मजीद कोई भी सब्सिडी, टैक्स छूट या तरजीही सहूलियात नहीं दी जाएंगी। हुकूमत किसी किस्म की फ्यूल सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी स्कीम भी नहीं लाएगी। रिटेलर्स के खिलाफ इस्लामाबाद और चारों सूबों में दुकान दुकान मुहिम शुरू की जाएगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का सालाना हदफ 918 अरब रुपए से बढ़ाकर 1065 अरब रुपए करने की तजवीज है। रवां साल 30 जून तक 49 अरब और अगले साल 147 अरब अजाफी लेवी वसूल की जाएगी। IMF को बताया गया कि नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया। इब्तिदा में 9 लाख नॉन फाइलर्स जद में आएंगे। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए 145 अदारे मालूमात देने के पाबंद होंगे। इनवाइसिंग सिस्टम, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से टैक्स नेट बढ़ेगा। स्मगलिंग के खिलाफ मौसर इकदाम किए जाएंगे। ट्रैक सिस्टम की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। पाकिस्तान के कितने फीसद बच्चे स्कूल से बाहर हैं? वफाकी वजारत तालीम आज रिपोर्ट जारी करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 21 और 22 में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम। पंजाब पहले नंबर पर। 2017 के मुकाबले में शरह में 5% बेहतरी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख 30 हजार, सिंध में 76 लाख 30 हजार, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख 30 हजार, बलूचिस्तान में 31 लाख 30 हजार और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 39% बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर और खैबर पख्तूनख्वा में 30% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 और 17 में 44% बच्चे स्कूल से बाहर थे, जबकि ये शरह साल 2021 और 22 में कम होकर 39% पर आ गई। इंटर की सतह पर 60% बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हैं और ये शरह मैट्रिक, मिडल और प्राइमरी सतह पर 44%, 30% और 36% रही।